Good morning, everyone. So, Good morning, sir. good morning. So already you know that we have started Fourier transform. Okay, definition of the Fourier transform, and started a little bit about properties. तो लास्ट क्लास में हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी ओके पढ़े थे linearity and time shifting. I think linearity property completed. Okay, so from today we start time shifting property. Okay, so the second property, that is called time shifting property, and if people aware about the time shifting property, we have studied time shifting property previous in different cases, previously in different cases. Okay, so in previous series also, and so here suppose you are having xt is the signal, and we are going to find out its Fourier transform, that is ft, and which is nothing but x of omega. Now thing is that there is a shifting in time of xt, that means x of t minus t naught. So that is a shifting is done, x of t minus t naught. So if it so happen, then the resultant Fourier transform would be e to the power minus j omega t naught x of omega. You will know that if it is minus t naught, so it should be minus t naught. If it is plus t naught, it should be plus t naught. So these are the properties for time shifting. Okay, so let us take some examples. Okay, del t, we know that del t, if you take the Fourier transform, it gives you constant value 1. Okay, so this is like nature. In the frequency domain, it gives you a constant value, and that is nothing but unity. And if xt is equal to a del of t minus 1, okay, so del t is 1, but del of t minus 1. So how much shifting is there? Unit. Okay, t naught is equal to, okay, t naught is equal to 1 here. Okay, so as per the shifting property, what we do, देखो यहाँ पे x of t minus t naught, so that should be e to the power minus j omega t naught into x of omega. Okay, so in this case t naught is equal to 1, so that means x of t minus 1, correct? So x of t minus 1, so that means e to the power minus j omega into 1, e to the power j omega into 1, so e to the power minus j omega हो जाएगा, इसलिए e to the power minus j omega. And x of omega, तो x of omega क्या था? c1 था, इसलिए 1 हो गया. So this is the property of time shifting. Okay, so if it is del of t plus 1, तो क्या हो जाएगा? Thing is same, only difference is there, that should be positive. There is a negative when it is del of t minus 1. When it is del of t plus 1, we have positive sign here, exponential j omega into 1. So these are very important. You have to remember all these properties in your mind. So I have written over there, it is very, very important property. So that is your shifting property. Using that Sir. time, बोलो बोलो बोलो. सर एक बार सर एक्सप्लेन कीजिए ना सर, वो x of t is equals to सर वो वाला सर Okay. एग्जांपल में देखो सर हम लोग टाइम g of t शिफ्टिंग minus प्रॉपर्टी 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है, तुम तो जानते हो, xt अगर हम लोग वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इज x ऑफ ओमेगा. एंड यू विल नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म मींस क्या है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन चला जाता है. So xt, if we take Fourier transform here, then we get x of omega. Now in the time domain signal, you are giving some shifting, either it is advance or delay. Okay. So if it is x of t minus t naught, then the Fourier transform of this shifting signal would be, what is that? That should be e to the power exponential e to the power minus j omega t naught. Okay, j omega t naught, as it is minus t naught, so that's why minus is there. And x of omega means previously जो विदाउट शिफ्टिंग के लिए जो सिग्नल था उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था वो है x of omega. So previously it was x of omega, so that
x of omega will be multiplied with a complex exponential, negative complex exponential term, e to the power minus j omega t naught if it is minus t naught. Now suppose plus t naught है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, e to the power j omega t naught x of omega हो जाएगा. So using this property, we are going to find out some Fourier transform. So we have taken one example here. Okay. So we know that del t का यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है. मैंने देखा है तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे. del t का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो यूनिट हो जाएगा, वैल्यू यूनिट है, दैट मींस कांस्टेंट हो जाएगा, डीसी लाइन नेचर हो जाएगा. तो now you are shifting the delta function. Okay, so time shifting properties now come into the consideration. So t naught, okay, x of t minus t naught, that means del of t minus t naught, isn't it? So del of t minus t naught. Okay, so del of t minus t naught, we are taking here t naught as unit value. So इसलिए del of t minus 1 हो गया. So as per the formula what we studied earlier, so we can write it e to the power minus j omega into 1 as per this formula. E to the power minus, because here it is minus, so minus is there, j omega is there, and t naught का वैल्यू कितना है, यूनिट है. so इसलिए e to the power j minus j omega, then x of omega. so यहाँ पे क्या था, x of omega, del of omega क्या था, 1 था. del t del of omega हो गया, तो उसका वैल्यू 1 था, इसलिए 1 मल्टीप्लाई हो गया. So similarly, if it is plus 1, so we get this form. Okay, so that is called the time shifting properties. Now using that property, we will take one more example here. Suppose xt is equal to half of del t minus 1 plus del t plus 1, find x of omega. Now see देखो यहाँ पे जो अलग अलग था वो हम लोग समेशन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बाहर में होगा, del of t minus 1 के लिए हम लोग के पास e to the power minus j omega है, हाँ, और del of t plus के लिए हम लोगों के पास e to the power j omega है. तो ये हो गया. तो you people know about that e to the power j theta plus e to the power minus j theta divided by 2, that is called cos of theta. So e to the power minus j omega plus e to the power j omega by 2 is cos of omega. So that is the final answer. Okay, that is the final answer. So that is all about your time shifting property for the Fourier transform cases. Now the time reversal property. You will know that if xt is there, if you write x of minus t, that means it's a time reversal property. It's a folding system. Okay. तो एक के लिए हम लोग किए थे. So I am not describing once again. कोएफिशिएंट के लिए हम लोग किए थे. Now suppose तुम्हारे पास xt है, Fourier transform x ओमेगा होगा. So what should be the Fourier transform of the reversal, time reversal signal? That means xt का time reversal कितना होगा, x of minus t होगा. तो property states that if it is x of minus t, then the Fourier transform of x of minus t would be x of minus omega. तो क्या फर्क है इन दोनों में, इधर x of omega था, सिंपल नेगेटिव साइन इज देयर, सो इधर माइनस इधर भी माइनस, टाइम डोमेन में माइनस तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी माइनस. सो टाइम रिवर्सल जो टाइम डोमेन में हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हो रहा है. सो x of minus 1. सो वी विल टेक वन एग्जांपल. देखो ये एग्जांपल हम लोग किए थे Fourier transform हम लोग in the beginning class, in the very first class we have transform xt is equal to the minus 80 into et. इसका Fourier transform क्या मिला था, रिजल्ट 1 by a plus j omega मिला था. Okay, so I am not moving the first class, you must go through that one. So xt if it is e to the power minus 80 ut, तो इसके लिए Fourier transform 1 by a plus j omega हो जाएगा. इसका हम लोगों को मालूम है. Now we convert, we take time reversal property here. तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी xt में क्या हो जाएगा, x of minus t हो जाएगा, करेक्ट, x of minus t. सो सर बोलो सर ये x of t सर एग्जांपल का सर सबसे फर्स्ट वाला सर x of t is equals to e to the power minus of 80, सर उसके बगल में सर क्या लिखा हुआ है सर, ये ut यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, दैट इज yes 0 sir, to infinity ut, ये जो sorry फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, yes sir, हां
को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल भी 0 से Yes. तक एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो ये हम किए थे, देखो मेरा पहले वाला नोट, ठीक है, आई एम नॉट मूविंग बैक देयर। तो 1 by a, these are the standard Fourier transform, 1 by a plus j ओमेगा ना। मैंने क्या बोला, टाइम रिवर्सल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो xt का टाइम रिवर्सल जब होगा क्या होगा, वो 100 माइनस टी हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस ए टी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, एंड u ऑफ t इज इक्वल टू u माइनस टी हो जाएगा। करेक्ट, u माइनस टी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये था तुम्हारा टाइम रिवर्सल। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, मैंने क्या बोला, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी सेम होगा, लेकिन डब्ल्यू की बदले में फ्रीक्वेंसी की प्लस ओमेगा जाएगा में माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय, देखो डब्ल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया। सो यूजिंग टाइम शिफ्टिंग नॉट टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, वी कैन हैव द Fourier transform here. So x of minus t it is equal to the power at u of minus t। तो इसका जब तुम Fourier ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला के यूज करके करोगे तो यही निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करोगे, हम लोग will use the reversal property। So reversal property states that if xt is equal to Fourier transform x of omega, so x of minus t के लिए Fourier ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x of minus omega हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा x of omega। तो 100 माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा जी, ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ओमेगा, सो दैट इज योर 1 बाय a माइनस j ओमेगा। सो दैट इज द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो फॉर द टू मेक इट क्लियर वी विल टेक वन मोर एग्जांपल हियर। ओके, so you people tell me, okay, I will not explain, you people tell me x of t Fourier transform x of omega। So now x1 t we have taken and we have written here x of minus t minus 4, x of minus t minus 4। okay, so x1 t is equal to x of minus t minus 4। so I am asking you to find out Fourier transform x of omega। so please do it, please do it। I will take you 2 or 3 minutes, 2 or 3 minutes, 10 3 है। I must get your answer within 2 minutes or 3 minutes। So using reversal property, you please find out Fourier transform of x of minus t minus 4, x of minus t minus 4। Okay, find out the Fourier transform using this property। So xt था, xt के लिए तुम्हारा Fourier transform मालूम है, that is x of omega। तो x of minus t के लिए क्या होगा, you simply write x of minus omega, means omega is replaced by minus omega। तो करो यहाँ पे। So when you will do time reversal, t is replaced by minus t। But I told you, you please remember, x of t के लिए x of omega, x of minus t, that means t is replaced by minus t। यहाँ पे देखो मैंने किया, x t is equal to the power minus a t ut। Time reversal means you are putting t is equal to minus t। So जहाँ जहाँ t है minus t put करो, तो Fourier ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ओमेगा is replaced by minus ओमेगा। ये सिंपल सा है। So have you done anyone?
देखो xt क्या था, 100 माइनस टी माइनस 4, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट x1 ओमेगा, मतलब क्या है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म तुमको निकालना है। तो xt फूरियर ट्रांसफॉर्म 100 घूमेगा, 100 t माइनस 4 के लिए क्या होगा बोलो। 100 माइनस टी माइनस 4 के लिए तुमको बोला गया है, तो यू फर्स्ट फाइंड आउट 100 t माइनस 4। तो 100 t माइनस 4 के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होगा बोलो, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यह t नॉट क्या है, -4 है। Yes, sir. करेक्ट, ओके। सो e टू द यस Yes, सर, sir. -4। तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा, t नॉट का वैल्यू क्या है, 4 है, और इधर माइनस है इसलिए यस सर, माइनस हो गया, तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा 4, यस सर। दैट मींस e टू द पावर j 4 ओमेगा, करेक्ट, इनटू x ऑफ ओमेगा। So that is your x of t minus 4. Now you have to use time reversal property. That means t को minus t से यस रिप्लेस सर, करना है। ओके, देखो t को minus t में रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया ये बाबू, e x to of the power minus t sir, e minus to the 4 हो power गया। j omega, yes sir, हाँ, e to the power j 4 omega x of and minus omega, x of minus omega। करेक्ट। So that will be your Fourier transform। वेरी गुड, समझ गए। तो ये है तुम्हारा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करके Fourier ट्रांसफॉर्म। तो ये था तुम्हारा 3 नंबर प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर टाइम कमिंग टू 4 नंबर प्रॉपर्टी, दैट इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो कोफिशिएंट के लिए हम लोग किए थे, xt के लिए कोफिशिएंट एक है, तो एक सब अल्फा टी के लिए क्या था, वो एक था, मैग्नीट्यूड सेम ही था। तो मैंने when we have studied coefficient of the Fourier series, over there we have found out all these things, so I am not discussing again here. Now for the Fourier transform, okay, our aim is Fourier transform. So now for the Fourier transform, xt के लिए x ओमेगा होता है, तो x of alpha t के लिए क्या होगा। So this property tells about that x of alpha t है, उसको अल्फा टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, देने से क्या हो जाएगा, फाइनली जो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा तुमको वो होगा दिस सॉर्ट ऑफ, क्या होगा, 1 बाय मॉड अल्फा, मींस ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है माइनस अल्फा, ओके, और प्लस अल्फा जो है 1 बाय मॉड अल्फा हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फूरियर ट्रांसफॉर्म 100 ओमेगा था, वो ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा बाय अल्फा, समझ गया, ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा बाय अल्फा। इफ इट इज 2t, सो 1 अपॉन 2, ओके, x ऑफ ओमेगा बाय 2, x ऑफ ओमेगा बाय 2 हो जाएगा। So for that we'll take one example for better understanding. देखो xt हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे, we have taken e to the power minus 80 into ut. You are familiar with that sort of expression right now. And we got Fourier transform 1 by a plus g omega. These are standard transform. That's why we are taking every time all these things. Everybody knows about that. So 1 by a plus g omega. Now क्या किया हम लोग, देखो t को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, x1 t is equal to x of 2t। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, t 2 हो जाएगा, so e to the power minus 2at u of 2t। तुम जानते हो u of 2t और u of t both are same, u of 3t 4t 5t they are same। ओके, तो ये क्या हो गया, e to the power minus twice at into ut। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए था तो 1 बाई ए प्लस जी ओमेगा, जब माइनस ट्वाइस से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस से हो जाएगा, ट्वाइस से 1 प्लस जी ओमेगा, करेक्ट। देखो ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज यस करके नहीं किए, डायरेक्टली किए हैं, e टू द पावर माइनस ए टी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस जी ओमेगा। सो जब ये माइनस ट्वाइस ए टी होगा तो क्या होगा, ये ट्वाइस ए प्लस 1 बाई ट्वाइस ए प्लस जी ओमेगा हो जाएगा। देखो 1 बाई ट्वाइस ए प्लस जी ओमेगा होगा। लेकिन नाउ वी यूज स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। देखो यूजिंग प्रॉपर्टी x ऑफ 2t, तो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, 1 अपॉन मॉड अल्फा, तो यार क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड 2, करेक्ट। 1 बाय क्या बोला, ओमेगा इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा बाय अल्फा, तो यहाँ पे 2 है, अल्फा का वैल्यू 2 है, तो ओमेगा इज जहां जहां ओमेगा था वही वही जगह में ओमेगा बाय 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए था, ए कांस्टेंट है, जे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 हो जाएगा, हो गया।
देखो ओमेगा इज रिप्लेस बाय ओमेगा बाय 2 एज पर द प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया देखो, हाफ, ये हाफ 1 बाय मॉड 2 मीन्स हाफ 1 बाय ए प्लस ओमेगा बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, ट्वाइस ए प्लस जी ओमेगा हो जाएगा और ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट 1 बाय ट्वाइस प्लस जी ओमेगा, मिल गया, देखो सेम मिल गया ना, सेम मिल गया। तो यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी वी कैन इजीली फाइंड आउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, x ऑफ अल्फा t होगा तो 1 बाय मॉड अल्फा x ऑफ ओमेगा बाय अल्फा। सो x ऑफ अल्फा t, तो xt के लिए तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, तो यू फाइंड आउट दैट वन फर्स्ट, देन यू मल्टीप्लाई विथ सम स्केलर क्वांटिटी जैसे 3t 4t 5t। सो फॉर्मूला क्या है, 1 बाय अल्फा x ऑफ ओमेगा बाय अल्फा। समझ गया? किसको भी डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है so you can ask me if you have any query. So I have summarized few formulas here, e to the power minus at, okay, ut इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 by a plus j ओमेगा, e to the power minus a mod t, इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म था twice by square plus omega square। We have done all these things in our previous notes in the previous class। del t के लिए 1 होता है, del of t plus 1 के लिए e to the power j ओमेगा होता है, del of t minus 1 के लिए e to the power minus j ओमेगा होता है। तो ये तुम्हारा xt था, ठीक है। तो ये हम लोग x ऑफ ओमेगा नहीं लिखे हैं, देखो y ऑफ ओमेगा बोल रहे हैं, मैंने सिंबॉलिकली जस्ट वी आर चेंजिंग, y ऑफ ओमेगा बोल रहे हैं और दिस स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट नाउ। ये xt है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इधर है। तो फिफ्थ में जो प्रॉपर्टी है ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। सो दैट इज कॉल्ड डुअलिटी प्रॉपर्टी। डुअलिटी प्रॉपर्टी यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ओके, छोड़ोगे नहीं जब तक नहीं समझेगा। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी देखो ये सिंपल है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट इज दैट एक्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा, वी आर नॉट राइटिंग x ऑफ ओमेगा, ओके, यहाँ पे x ऑफ ओमेगा जाएगा, मैं y ऑफ ओमेगा लिख रहा हूँ और so that you don't be confused। so xt फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग y ऑफ ओमेगा निकल फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं xt फूरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा होगा, तो हम लिख सकते हैं ये ओमेगा को हटा के t, ओमेगा को हटा के t, सो y ऑफ t, ओके। you have y of omega means Fourier transform of xt and y omega, these are the ये Fourier transform पेयर, ओके। xt Fourier transform y of omega, तो इसको क्या कहते हैं, Fourier transform पेयर कहते हैं। तो you have y of omega, that is a Fourier transform of xt। now what are you doing, ये ओमेगा को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पुट कर रहे हैं, दैट इज y ऑफ t। देखो तो y ऑफ t के लिए जब फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, देखो y ऑफ t की हम कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल निकल कर चुके हैं, देखो। so we find out the Fourier transform yt, what should be the Fourier transform yt, the statement duality property states that it should be twice pi, so twice pi multiply हो जाएगा into x of minus omega, x of minus omega, so x of omega की जगह में x of minus omega हो जाएगा, करेक्ट। ये xt था, ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, करेक्ट। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेक वन एग्जांपल, देन ओनली इट विल बी मोर क्लियर। तो xt फूरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा, सो y ऑफ t के लिए हम लोग कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे, ट्वाइस बाय इनटू x ऑफ माइनस ओमेगा। तो टेक वन एग्जांपल, देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, ओके, दैट इज a। तो xt इक्वल टू क्या है, a है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तुम्हारा, ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, व्हाट शुड बी द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एक्चुअली। तो मैंने क्या बोला, तुमको ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड आउट करना है फर्स्ट, ठीक है। तो ए के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा, देखो ए के लिए x इक्वल 1 होता तो क्या होता, फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ये होता, डेल टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ये पेयर होता कि नहीं, डेल टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होता। तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो तुम जानते हो
ए इंटू डेल टी होगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ए हो जाएगा। यहाँ पे डेल टी का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 है। ये ए ऑफ डेल टी होगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ए हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो है ए, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा, ए डेल टी, वी नो दैट ए डेल टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ए। ओके, तो ये है तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मिल गया, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मिल गया। नाउ y ऑफ ओमेगा मींस y ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो a के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये देखो राइट साइड में y ऑफ ओमेगा है, राइट साइड में क्या है, a है। सो y ऑफ ओमेगा के लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। सो y ऑफ ओमेगा पे ओमेगा जगह में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, t, लेकिन a तो कांस्टेंट है इसलिए a ऑफ t तो लिख हम वी कांट राइट। तो इसलिए a को हम सिंपल सा लिख रहे हैं a का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस बार फॉर्मूला ट्वाइस पाई लिख दिया इनटू एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये देखो xt एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, ये xt एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे क्या है, a ऑफ डेल टी हम क्या लिखेंगे, a इंटू डेल ऑफ ओमेगा, a इंटू डेल ऑफ माइनस ओमेगा। तो ये है तुम्हारा a का फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। xt के लिए xt इज इक्वल टू a, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a। तो whenever you are having one question, then you have to find out Fourier transform series, pair, Fourier transform pair। तो xt इक्वल टू a के लिए Fourier transform क्या है, देखो 1 होता तो डेल टी 1 हम लोग लिख सकते हैं, डेल टी Fourier transform pair 1, लेकिन यहाँ पे a है तो इसलिए a डेल टी इज इक्वल टू a, ये डेल टी Fourier transform pair है, मींस a डेल टी का Fourier transform a होगा, ये Fourier transform pair है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग दिस डुअलिटी प्रॉपर्टी वी कैन राइट ए इज इक्वल टू, मतलब ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एज पर द प्रॉपर्टी ट्वाइस पाई लिख दिया इनटू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब क्या है, ये जो xt का एक्स ऑफ माइनस ओमेगा है, xt का माइनस ओमेगा तो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा लिख दिए हैं, इसको हम लोग t की जगह में माइनस ओमेगा लिख दिया, ठीक है, t की जगह में माइनस ओमेगा। तो देखो यहाँ पे ए लिख दिया, टी जगह में माइनस ओमेगा लिख दिया। सो दैट इज द प्रॉपर्टी। सो ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, ट्वाइस पाई ए इनटू डेल ऑफ ओमेगा। ठीक है, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। ये ध्यान से देखो, xt इज इक्वल टू e टू द पावर jt, xt इज इक्वल टू e टू द पावर jt, e टू द पावर jt को तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड आउट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर jt। तो e टू द पावर jt के लिए तुमको फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड आउट करना है। फूरियर सीरीज सॉरी फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, देखो देखो e टू द पावर j ओमेगा, ये तो माइनस लिया ना यहाँ पे ना प्लस है, देखो e टू द पावर jt। तो देखो e टू द पावर j ओमेगा डेल t प्लस 1, ये तुम ले सकते हो, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, ठीक है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। ओके, सो we'll take e to the power jt। तो हम लोग we know that del of t plus 1 e to the power j ओमेगा। ओके, e to the power jt है तो e to the power j ओमेगा कहाँ है, देखो e to the power j ओमेगा है। सो del t plus 1 ये तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। सो चूज दैट वन। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन देखने के बाद तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड आउट करना है फर्स्ट। तो वी हैव del t plus 1 e to the power j ओमेगा। So applying duality property, now we are going to find out the Fourier transform e to the power jt। So e to the power jt Fourier transform formula क्या है, twice pi, okay, twice pi into del of t जगह में क्या होगा, माइनस ओमेगा। मैंने क्या बोला, माइनस ओमेगा होगा। देखो फॉर्मूला तो वही है, x तो माइनस ओमेगा, ये x t जगह में माइनस ओमेगा हो गया, दैट्स x t माइनस ओमेगा हो गया, ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई हो गया। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया हम लोगों के लिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। तो e to the power jt e to the power j omega, so it is a similar kind of expression, that's why we have taken this property here, this Fourier transform property। e to the power jt था, e to the j omega है, इसलिए del t plus 1 Fourier transform g to the power j omega, ये हम लोग ले चुके हैं। देखो
So we have taken that one. Now you are finding out e to the power jt. Okay, e to the power jt का फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, ट्वाइस बाई मल्टीप्लाई होगा पहले और 100 माइनस ओमेगा होगा, 100 माइनस ओमेगा होगा। सो ये क्या होगा, डेल ऑफ माइनस ओमेगा प्लस 1, डेल ऑफ माइनस ओमेगा प्लस 1। सो यू टेक माइनस 1 कॉमन हियर, सो ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा। सो तुम जानते हो डेल ऑफ माइनस टी और डेल ऑफ टी इवन फंक्शन होता है, वो सेम होता है। तो इसलिए ट्वाइस बाय डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर jt इज इक्वल टू, माने नॉट इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर jt का फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्वाइस बाय डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1। सो दैट इज द आंसर, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर jt using duality property. So here I am taking one more example, xt e to the power jt e to the power minus jt। तो ये कौन फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या तुम लोगे, ये e to the power minus j omega del t minus 1 e to the power minus j omega, that's there। So we have del t minus 1 e to the power minus j omega। तो minus j omega फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, e to the power minus jt का एज पर प्रॉपर्टी ट्वाइस बाय डेल ऑफ t जाएगा में माइनस ओमेगा माइनस 1, ओके माइनस ओमेगा माइनस 1। ओके तो फिर से तुम माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा ट्वाइस बाय डेल ओमेगा प्लस 1। ये है तुम्हारा e टू द पावर माइनस jt के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके सो e टू द पावर माइनस jt के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिल गया, ट्वाइस बाय डेल ओमेगा प्लस 1। ये है तुम्हारा e टू द पावर jt एंड e टू द पावर माइनस jt के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो दीस आर स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म। Okay, so using that standard Fourier transform, we'll do few more explanations. Okay, देखो xt cos t, तो cos t का मतलब क्या है, e to the power jt plus e to the power minus jt by 2। तो बोलो duality property में किसी को भी डाउट है तो बोलो, we'll explain one more, otherwise we'll go further for using duality property। We'll take few more example on duality property। Okay, so पहले तुमको जो क्वेश्चन again sir, हाँ बोलो बोलो। तो explain it once again अच्छा in briefly। ओके ओके तो देखो, so we'll take this example, by taking this example I am explaining, okay it will be better। xt के लिए e to the power jt, ये तुम्हारा वन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिया गया है xt जो है e to the power jt, इसके लिए तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। so you have to find out फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर e to the power jt। तो क्वेश्चन जो पूछेगा, whenever you are going to find using duality property, then you have to find out the Fourier transform क्या है, e to the power jt। ठीक है, तो e to the power j ओमेगा है, e to the power j ओमेगा किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, देखो ये है डेल ऑफ t प्लस 1। ओके ठीक है, सो डेल t प्लस 1 फूरियर ट्रांसफॉर्म e to the power j ओमेगा। ये देखो xt फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये फॉर्मूला है। xt की जगह में तुम क्या लिखे हैं, डेल ऑफ t प्लस 1 फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा। सो दैट मींस ये क्या है तुम्हारा y ऑफ ओमेगा है। तो नाउ क्या है y ऑफ t करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर jt हो जाएगा। मैंने क्या बोला, y ऑफ ओमेगा ये लेफ्ट में आ गया y ऑफ t होके, तो ये राइट साइड में है e टू द पावर j ओमेगा। तो ये जब लेफ्ट में आएगा y ऑफ t होगा, तो y ऑफ t मींस क्या हो जाएगा, e टू द पावर jt होगा e टू द पावर jt। तो e to the power jt फूरियर ट्रांसफॉर्म तुमको फाइंड आउट करना है। e to the power yt मींस e to the power jt, e to the power jt के फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ट्वाइस पाई होगा 100 माइनस ओमेगा होगा, मींस यहाँ पे जो होगा 100 माइनस ओमेगा। ठीक है, तो e to the power jt के लिए क्या होगा, e to the power jt फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्वाइस पाई इनटू ये क्या है, डेल ऑफ t प्लस 1 है, तो t की जगह में क्या लिखोगे, एज पर द फॉर्मूला माइनस ओमेगा। So del of minus omega plus 1 twice pi into del of minus omega plus 1। yes sir, 2 pi x omega minus 1। हाँ x माइनस ओमेगा, माने t जगह में माइनस ओमेगा तुमको लिखना पड़ेगा। इसलिए देखो तुमको क्या फाइंड आउट करना है, e टू द पावर jt का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा
जो e टू द पावर jt जो है e टू द पावर j लाइक is there any Fourier transform क्या? So we have okay standard Yes, sir. Del t plus 1. del t plus 1 है, तो इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे ये वाला, ये फर्स्ट वाला लास्ट लाइन xt Fourier transform y of omega, तो हम लोग क्या लिखेंगे x of t means del of t plus 1 Fourier transform e to the power j omega that is equal to y of omega. now लेफ्ट में आओ y of t करके, तो y of t जब होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगी e to the power jt हो जाएगा, तो उसका E to the power zt. jt होगा, तो उसका ही तुमको Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो वो तुम लाइन पे आ गया e to the power jt का, तो Fourier ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो तुम फॉर्मूला तुम्हारे पास है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके तुम कर सकते हो जो मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है, से माइनस इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस प्लस इंफिनिटी, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करके तुम क्विकली कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, ट्वाइस पाई होगा मल्टीप्लाई इनटू x माइनस ओमेगा, माने मींस x जो है ये x माइनस t की जगह में माइनस ओमेगा, तो ये डेल ऑफ t प्लस 1 है, इधर डेल ऑफ t प्लस है, सो ट्वाइस पाई इनटू डेल ऑफ t प्लस 1, तो डेल ऑफ t की जगह में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या है माइनस ओमेगा है, Minus omega. प्लस 1 Minus omega plus 1. करेक्ट, ये मैंने किया है, देखो समझ जाओ ये था, ठीक है। Yes, sir. Here it is given 2 pi del minus omega plus 1. ठीक ये है। तो माइनस ओमेगा प्लस 1, तो माइनस, तो ये तुमको पता है डेल ऑफ माइनस टी और डेल ऑफ टी वो सेम होता है, डेल ऑफ माइनस टी इवन प्रॉपर्टी है इम्पल्स रेस्पॉन्स, इसलिए ये माइनस हो और प्लस हो वो बराबर सेम है होगा, तो ये मिल गया। माइनस के लिए तो ये होगा, वो जब वो समझ में आ गया ये भी समझ में आ जाएगा, डेल ऑफ माइनस ओमेगा माइनस 1 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस जेटी प्लस, तो cos t के लिए क्या हो जाएगा, cos t इज टू द जेटी प्लस e टू द माइनस जेटी बाय 2, तो हाफ ये तो तुमको मालूम हो गया e टू द पावर जेटी का क्या है, ट्वाइस बाय डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1, और माइनस t के लिए क्या होता है, ये है ट्वाइस बाय डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1, सो टेक ट्वाइस बाय कॉमन, सो 2 टू कैंसिल आउट, सो पाई इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1, ये बहुत दिमाग में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। क्या मिला तुमको, cos of t, because you are the student of electronics and communication engineering, you have already studying or learning something about the communication, whenever you are going to study about amplitude modulation, DSP, CSS, whatever, you will have the spectrum analysis, upper side में lower side में, okay, so you will have the clear idea right now। तो देखो ओमेगा टी, cos of ओमेगा टी पूरे टर्म क्या मिल गया, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो cos of ओमेगा टी, तो क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा वैल्यू क्या है बोलो, ओमेगा नॉट